Everyone, welcome back. Um, in this session today, we are going to talk about a brilliantly written essay, which is Decolonizing the Mind, written by Ngugi Wa Thiong'o. We had already spoken about Thiong'o in one of our short videos, but today we're going to talk about him in detail, and we are going to look at this essay. Let me take the content page of this. Yeah. So, see, it's not a very long, it is definitely a long one, 87, more than 87 pages. But if you've got time, I would say go through the essay line by line, right? Now, it has four chapters. It talks about the question of language, the language of African literature, language of African theater, language of African fiction, and then finally the quest for रेलेवेंस और एक इंट्रोडक्शन चैप्टर भी है विच इज टुवर्ड्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रगल यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रगल तो कंटेंट पेज से ये समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज के बारे में ये बात करना चाह रहे हैं है ना अगर हम इंट्रोडक्शन पे जाएं एंड इट्स नॉट इवन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा ठीक है दिस बुक इज समरी ऑफ सम ऑफ द इश्यूज इन विच आई हैव बीन passionately involved for the last 20 years of my practice in fiction, theatre, criticism, and teaching literature. तो राइटर कह रहे हैं ना ये बुक उस बारे में है कुछ इश्यूज के बारे में है जो मैं पिछले 20 सालों से मैं फेस कर रहा हूं मैं इन्वॉल्व हूं उन चीजों में माय प्रैक्टिस इन फिक्शन जो रहा है मैं जो थिएटर में काम किया क्रिटिसिज्म पे काम किया है लिटरेचर जो मैं पढ़ा रहा हूँ एंड फॉर दोज अब ये कह रहे हैं जिन्होंने मेरी बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं कुछ जैसे कि होम कमिंग है या राइटर्स इन पॉलिटिक्स है या बैरल ऑफ पेन है इवन डिटेन्ड उनको शायद डेजा वू वाली फीलिंग आएगी कि यार ये तो मैंने पहले भी सुना है या you understand deja vu, right? क्यों? क्योंकि maybe he has already spoken about some of these things in his previous works. So such a reaction will not be far from truth, he says. लेकिन जो lectures हैं on which this book is based have given me the chance to pull together in a connected and लेकिन हाँ here and there he must have talked about the language issue, but now he has put them all together, connected them in a coherent way. The main issue on the language question in literature, which I have touched on here and there in my previous works and interviews. So I hope, though, that the work has gained from the insights I have received from the reactions, friendly and hostile, of other people to the issues over the same years. जो भी reactions इनको मिले होंगे कुछ hostile reactions मिले होंगे कुछ अच्छे reactions मिले होंगे this book is a part of a continuing debate all over the continent about the destiny of Africa. तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी ऑफ कोर्स क्योंकि बड़ा है इंट्रोडक्शन तो फिर भी छोटा ही है इट्स जस्ट 3 पेजेस अच्छा दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूपीपीएससी जीडीसी का सिलेबस न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश जो आपका यूनिट है उसका ये पार्ट है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट यूपीपीएससी जीडीसी एंड बहुत सारा सिलेबस आप कवर कर चुके हैं तो आई वुड से प्लीज गो थ्रू द एसे you will love it. And if again you are somebody who's preparing for it and you want a structured way of each har ek topic pe video lectures you can join my course. Originally the course was for 5,000 but a offer price pe hai which is 3,999 the least of any of my courses. So you can join इसमें आपको सारे lectures हर एक टॉपिक पे मिलेगा नोट्स एमसीक्यूज का मेरा वेबसाइट है उसका मेंबरशिप आपको मिल जाएगा और बाद में हम मॉक टेस्ट करेंगे सो यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन टेलीग्राम का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो नाउ व्हाट आई हैव डन हियर इन दिस लेक्चर इज क्योंकि काफी बड़ा है पूरा नहीं कर पाएंगे तो मैंने हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू एक डिटेल्ड ओवरव्यू मैं आपको दूंगी ठीक है तो लेट्स गो टू दैट गुगी वा थियोंगो पहले हम थियोंगो की लाइफ के बारे में बात करेंगे ठीक है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अफ्रीकन राइटर्स एंड थ्योरिस्ट्स हैं ये डीकोलोनाइजेशन के एडवोकेट हैं लिंग्विस्टिक फ्रीडम के इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड हिज लाइफ रिफ्लेक्ट्स द पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ कीनिया द स्ट्रगल against colonialism and the cultural resistance against neo-colonial domination. तो we all understand colonization का क्या effect हुआ है because
we understand from our country's point of view. um, so somehow we can relate to it. तो डीकोलोनाइजेशन की इन्होंने बात की है, ये उसके थ्योरिस्ट रहे हैं। इनकी जो लाइफ है वो रिफ्लेक्ट करती है ये पूरा जो पॉलिटिकल टर्मोइल रहा कीनिया में, पूरा जो स्ट्रगल है कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट, कल्चरल रेजिस्टेंस जो है। सो ही वाज बोर्न ऑन 5th January 1938. लेट मी शो हिम टू यू। दिस इज थियोंगो। He passed away recently, last year, 2025. He was 87 years old. 28th May. अभी 1 year भी नहीं हुआ है. And this is him. We should always see, who we are talking about. This is Thiongo. ये है decolonization, decolonizing the mind, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. And a lot of other books that he has written. Weep Not Child, Petals of Blood, Devil on the Cross, right? So he was born near Limuru in British colonial Kenya. He was born into a large Gikuyu family. Please remember, Gikuyu family. During the period of British colonial rule, इनका जो childhood था, it coincided with the Mau Mau uprising 1952 से 1960, जो एक बहुत ही violent anti-colonial movement था अगेंस्ट ब्रिटिश सेटलर्स। तो बहुत सारे अपराइजिंग्स हुई थी हर जगह पे, अफ्रीका में। और जब हम लोग थोड़े दिन पहले हमने बात की थी एक और राइटर की, व्हाट वाज हिज नेम, skipped from my mind. And there also, we saw Biafra का वॉर, तो हमने डिस्कस किया था क्या था। वहीं पे माओ माओ अपराइजिंग का भी नाम आता है। तो इनका जो चाइल्डहुड था इट कोइंसाइडेड विद दैट। माओ माओ अपराइजिंग एक बहुत बड़ी एंटी कॉलोनियल रिबेलियन था, ठीक है, जो कीनिया में हुआ यूके के अगेंस्ट। कॉलोनियल रूल चल रहा था 1950s में, उस टाइम पे ये उनके अगेंस्ट ये एक अपराइजिंग थी। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, एक मूवमेंट जो अफ्रीकन हिस्ट्री में हम देखते हैं। और कीनिया किस पाथ पे जाएगा उसका एक बहुत बड़ा रोल था माओ माओ अपराइजिंग का टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, ठीक है। सेवरल मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वर डायरेक्टली अफेक्टेड, जैसे कि हिज ब्रदर जॉइंड द माओ माओ फाइटर्स, हिज मदर वाज टॉर्चर्ड, हिज विलेज वाज डिस्ट्रॉयड एंड रीलोकेटेड इनटू डिटेंशन विलेजेस। वेल, वॉर्स चाहे वो छोटी सी हो ऐसी हो कभी अच्छी नहीं होती, वो आपको नुकसान ही देके जाती हैं। तो आपका पूरा विलेज रिलोकेट हो गया, लोगों को घर खत्म हो गए। These traumatic events shaped his lifelong concern with colonial violence. That this is the kind of violence that took place in the colonial times. Land dispossession, जो आपका था वो रहा ही नहीं आपका, और resistance. He studied at Alliance High School, one of the most prestigious colonial schools in Kenya. फिर ये Makerere University में गए college in Uganda, which was at that point of time, many of the universities were affiliated with the University of London. So he went there, and then later he studied at the University of Leeds in England. While there at the university, he wrote his first major play, which is The Black Hermit, performed during Uganda's independence celebrations in 1962. उस टाइम पे परफॉर्म किया गया था जब उनका इंडिपेंडेंस, युगांडा का इंडिपेंडेंस हुआ था। ये इनके अर्ली कुछ नॉवेल्स हैं। वीप नॉट चाइल्ड, विच वाज द फर्स्ट मेजर इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल जो एक ईस्ट अफ्रीकन राइटर ने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में। दिस फोकसेस ऑन द Mau Mau rebellion and colonial education. The River Between, which explores the conflict between Christian converts and ट्रेडिशनल गिकुयू बिलीव्स। तो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है, एक तरफ क्रिश्चियन कन्वर्ट्स हैं और दूसरी तरफ जो उनके बिलीव्स थे गिकुयू के कल्चरल बिलीव्स थे, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट। अ ग्रेन ऑफ व्हीट, another very nice and important work. This was set during the Kenyan independence. It deals with betrayal, with heroism and collective memory. More complex narrative structure influenced by modernist techniques. अब आप टाइम पीरियड देखो, 60s 70s इंग्लैंड में क्या चल रहा था,
ऑफ कोर्स पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हो गया था। 50s में हम वर्किंग क्लास के स्ट्रगल्स को देख रहे थे, एंग्री यंग मैन को देख रहे थे। तो कुछ इन्फ्लुएंस तो होता ही है। एट दिस स्टेज Gugi was writing in English and was celebrated as a major African novelist, ठीक है? अब 1970s के टाइम पे ही बिकेम इंक्रीजिंगली क्रिटिकल ऑफ सर्टेन थिंग्स, जैसे कि नियो कॉलोनियल कैपिटलिज्म। He started writing against neo-colonial capitalism, Kenyan post-independence elite कि इंडिपेंडेंस के बाद जनरली जो उस नेशन के एलीट क्लास होते हैं, वो लोग लीड करने लग जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही था। कीनियन पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एलीट क्लास था, he became critical of them. Cultural imperialism. He began to embrace Marxist and Fanonian thought, फ्रांस फैनन। उनके जो थॉट प्रोसेस था, उनसे ये इन्फ्लुएंस्ड हमें दिखाई देते हैं। और इस टाइम का इनका एक की वर्क है विच इज पेटल्स ऑफ ब्लड, वेरी पावरफुल क्रिटिक ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस करप्शन। अब इंडिपेंडेंस तो होगी लेकिन नेशन में करप्शन शुरू हो गया। रेवोल्यूशनरी जो आइडियल्स थे एक टाइम पे, उनको आप छोड़ के अलग दिशा में, जैसे एनिमल फार्म है, आप पहले रिबेल कर रहे हो, एनिमल्स आर रिबेलिंग अगेंस्ट द ह्यूमंस हु आर टॉर्चरिंग देम, बट देन दे themselves do that. The elite of the animals start doing the same things. Language debate and cultural revolution. One of the most important turning points in his life was his decision to abandon English. आप सोचो पूरा टाइम इंग्लिश में लिख रहे हैं और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं इंग्लिश अबैंडन कर दूंगा। मैं जो प्राइमरी लिटरेरी लैंग्वेज था इनका, उसको इंग्लिश नहीं रखूंगा। एंड ही शिफ्टेड टू गिकुयू। 1977 he co-wrote a play in Gikuyu, which was this: I will marry when I want, with Gugi wa Miri इनके साथ इन्होंने लिखा। The play was performed by peasants and workers at Kamirithu Community Education and Cultural Center. एंड इस प्ले ने अटैक किया एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिज्म को, कि इस तरह की कैपिटलिज्म जो हमारे देश के वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, चर्च की हिपोक्रेसी को और लैंड डिस्पोजिशन को। और कीनियन गवर्नमेंट ने देखा कि ये तो डेंजरस प्ले है भाई, तो ऑफकोर्स क्या करेंगे। जब गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे अगेंस्ट लोगों को भड़काया जा सकता है, ऐसे इंसान को वो जेल में डाल देते हैं। सो ही वाज अरेस्टेड, कोई ट्रायल नहीं हुआ इनका, दिसंबर 1977 में बाय द कीनियन गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट योमो केन्याटा, एंड ही वाज डिटेन्ड इन दिस प्रिजन फॉर 1 year। अब प्रिजन में जब ये थे तब इन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। इन्होंने एक नॉवल लिखा, जो टॉयलेट पेपर मिलता था उनको वहां पे प्रिजन में, उसके ऊपर इन्होंने नॉवल लिख डाली, and it was called Devil on the Cross. Originally, it was this. And this marked his complete break from English, कि मैं इंग्लिश में अब लिखूंगा ही नहीं। फिर आफ्टर जब गवर्नमेंट चेंज हुआ अंडर डैनियल अरप मोई, गुगी वेंट इनटू एग्जाइल, चले गए यूनाइटेड किंगडम रहने चले गए, और फिर बाद में यूएस चले गए। He taught at various universities, including Yale, New York University. Eventually became a distinguished professor at the University of California. And major theoretical work इनका आया, Decolonizing the Mind. This is one of the most important works in post-colonial theory. इसमें वूगी आर्ग्यू करते हैं, लैंग्वेज इज अ कैरियर ऑफ कल्चर। जब आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख रहे हो तो आप समहाउ उस लैंग्वेज में अपने जो भी कल्चर है उसको आप कैरी कर रहे हो। अगर आप कॉलोनियल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो तो आप अपनी हेरिटेज को पीछे छोड़ रहे हो किसी तरह से। दिस वाज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन agree to disagree. Colonial languages alienate Africans from their heritage. That's what he believed. And true decolonization must involve linguistic liberation. कि आप linguistically free हो, आप अपना language use कर रहे हो, तो आप truly decolonization तब होगा। What I believe is English is no longer the language of the colonials actually. And in fact, it was not their language to begin with. English has emerged. It has a history of its own, right? And it's no longer their language. So
Yeah, this text made him a foundational thinker in post colonial studies. फिर बाद का फिक्शन और कुछ मेमोइर्स उन्होंने लिखा. Matigari, so politically charged that Kenyan government initially believed the protagonist was a real revolutionary. इतना खतरनाक ये वर्क था. Wizard of the Crow, a massive satirical novel critiquing dictatorship and global capitalism. It's often compared to magical realism and African oral tradition. और इन्होंने memoir भी लिखा, एक trilogy of memoirs लिखा, which was Dreams in a Time of War, childhood, in the house of the interpreter, his school years, birth of a dream weaver, university life, and early writing career. So these works give a deeply personal account of colonial education and intellectual formation. फिर हुआ रिटर्न टू कीनिया. एग्जाइल में थे ना इतने टाइम. फिर वापस आए कीनिया 2004 में आफ्टर 22 years इन एग्जाइल. फिर कुछ टाइम के बाद आने के बाद ही एंड हिज वाइफ वर वायलेंटली अटैक्ड in what many believe was a politically motivated assault. बेचारे इतने टाइम के बाद 22 years के बाद वापस आए कीनिया और थोड़े टाइम के बाद इनको अटैक कर दिया गया, इनको और इनकी वाइफ को. Continue to live largely abroad but maintain strong engagement with African intellectual life as well. And these are some major themes in his life and work: colonial trauma, land disposition, betrayal of independence, language and identity, peasant resistance, cultural decolonization. Okay? So he is one of the central figures in African literature, foundational critique, foundational theorist of post-colonial theory, and frequently mentioned as a potential Nobel Prize contender, but mila nahi inko. So this is about him. And now we're going to talk about decolonizing the mind. So as I told you, uh, go through production once. He talks about what he has written, how he has reached here. We read the first paragraph. Just go through the introduction later on, maybe. My approach will be different. I shall look at the African realities as they are affected by the great struggle between two mutually opposed forces in Africa today, which are an imperialist tradition on one hand and a resistance tradition on the other. इस तरह से इन्होंने बात की है. For these patriotic defenders of the fighting cultures of African people, imperialism is not a slogan. It is a real palpable in content and form and in its methods and effects. Imperialism की ये बात कर रहे हैं. I'm going to start with the first chapter, which is the language of African literature. The first chapter in Gugi's most powerful and programmatic statements. It is not merely literary criticism, it is a political manifesto about language, about culture, and power. द चैप्टर वॉज ओरिजिनली प्रेजेंटेड एज अ पेपर. इन्होंने कहा ना कि अलग अलग लेक्चर्स को इन्होंने फिर कंबाइन किया है, तो ये भी एक पेपर के तौर पे प्रेजेंट किया गया था 1962 जब ये यहाँ पे थे. मैकरेरी कॉन्फ्रेंस ऑफ अफ्रीकन राइटर्स ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेशन एंड गूगी रिविजिट्स दैट हिस्टोरिकल मूवमेंट टू क्रिटिक इट. ठीक है. ऑल्सो आई जस्ट गो टू द विकिपीडिया पेज ऑफ डीकोलोनाइजिंग द माइंड. It's always good to first take an overview and then go on to read. ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. ठीक है. The politics of language in African literature is the subtitle. So he describes the book as a summary of some of the issues in which I have been, जो इनका first statement था introduction में, ये हमने भी पढ़ा. And 4 essays हैं इसमें, ये भी हमने देख लिया. Several of the book's chapters originated as lectures. And apparently, this format gave Googie the chance to pull together in a connected and coherent form the main issues on the language question in literature. Okay? It's a farewell also to English. It addresses the language problem जो African authors face करते हैं. So it's a blend of autobiography, post-colonial theory, pedagogy, African history, and literary criticism. सबसे पहले ये बात करते हैं द हिस्टोरिकल प्रॉब्लम, द मैकरेर कॉन्फ्रेंस 1962.
So Guki begins by recalling the 1962 conference at Makerere University in Uganda, and the conference was titled Conference of African Writers of English Expression. So he identifies a fundamental contradiction here. African writers were gathering to discuss African literature, but the conference excluded works written in African languages. ठीक है, कॉन्फ्रेंस की याद कर रहे हैं वो, कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस का टाइटल ये था कि कॉन्फ्रेंस अफ्रीकन राइटर्स की, लेकिन जो जो उन्होंने इंग्लिश में एक्सप्रेस किया है। ये कह रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये था कि अफ्रीकन राइटर्स गैदर हो रहे हैं अफ्रीकन लिटरेचर को डिस्कस करने के लिए, लेकिन अफ्रीकन लैंग्वेज में जिन्होंने लिखा है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो दिस रेजेस द की क्वेश्चन, कैन अफ्रीकन लिटरेचर बी रिटन इन यूरोपियन लैंग्वेजेस? Chinua Achebe was the one I was talking about earlier when I told you about the Biafran War. हाँ, नाम ही नहीं याद आ रहा था इनका। So writers like Chinua Achebe, Wole Soyinka, दोनों को हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा है, and others were present. ये सब राइटर्स थे वहाँ पे, but writers producing literature in Gikuyu, Yoruba or Swahili were not included. Gugi now sees this as the moment where colonial linguistic domination was normalized. लैंग्वेज ऑफ द colonials वो यूज कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर दिया है विद इन द अफ्रीकन लिटरेरी इंस्टीट्यूशंस। आपने अफ्रीकन लिटरेचर की आप बात कर रहे हो, लेकिन अफ्रीकन लैंग्वेज में जो लोग लिटरेचर लिख रहे हैं उनको वो है ही नहीं वहां प्रेजेंट, उनकी बात ही नहीं हो रही। Language is culture, not as communication. So Kuki now argues that language is not merely a tool of communication. It is a carrier of culture. It is a repository of memory. It is a means of self-definition. It is a worldview. Language सिर्फ communication के लिए नहीं यूज होता, क्योंकि लैंग्वेज देखो हम सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। यू रिमेंबर सेपियर वुल्फ हाइपोथेसिस कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो उससे आपका थॉट प्रोसेस इफेक्ट होता है। इट इज सम इन सम केसेस वेरी ट्रू ऑल्सो। आप किसी और को देखो जो यू नो वेरी विजिबली आपसे अलग लैंग्वेज यूज करता है, फिर आप उनके थॉट प्रोसेसेस को स्टडी करो, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। वैसे ये भी कह रहे हैं कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। आपकी लैंग्वेज आपके कल्चर को दर्शाती है, आपकी मेमोरीज, इट इज अ रेपोजिटरी ऑफ मेमोरी। आप वही वर्ड्स यूज करोगे जो समहाउ आपके ब्रेन में एक मेमोरी को कैरी कर रहे हैं। सेल्फ डेफिनेशन, वर्ल्ड व्यू। सो ही डिवाइड्स लैंग्वेज इनटू टू इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। एक तो लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, दूसरा लैंग्वेज एज कल्चर। सो लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन इनेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हो, इट कनेक्ट्स इंडिविजुअल्स सोशली। जब हम लैंग्वेज को एक कल्चर की तरह देख रहे हैं तो इट एम्बॉडीज वैल्यूज, उसके उस लैंग्वेज के अंदर वैल्यूज हैं। इट इज ट्रू, इट कैरीज कलेक्टिव मेमोरी। हाउ लिंग्विस्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज को, जब हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ लैंग्वेजेस में कुछ एक्सप्रेशंस के लिए भी वर्ड्स होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता। जैसे कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ना, इज देयर अ पर्टिकुलर टर्म फॉर रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स? इट्स नॉट देयर इन हिंदी, इट्स नॉट देयर इन इंग्लिश, बट इट इज देयर इन चाइनीज, मैंडरिन में है। देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर इट। लैंग्वेज में कलेक्टिव मेमोरी, कलेक्टिव थॉट प्रोसेस, वैल्यूज भी आती हैं। इट शेप्स पर्सपेक्टिव और परसेप्शन ऑफ रियलिटी। आप कैसे देख रहे हो रियलिटी को। सिमिलरली हम लोग कलर्स की बात करते हैं, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसमें छोटे छोटे कलर्स के डिफरेंस के लिए भी अलग अलग नेम्स हैं। वो भी आपकी रियलिटी को आप कैसे देख रहे हो, इट शेप्स योर परसेप्शन। women और men, women can understand what is cherry pink, what is पता नहीं कौन कौन से अलग अलग कलर्स, which men probably can't understand because वो लिपस्टिक के शेड्स हैं, नेल पेंट्स के शेड्स हैं अलग अलग। इट फॉर्म्स आइडेंटिटी ऑल्सो। सो व्हेन अ people lose their language, they lose their historical continuity, their connection to land, their cultural autonomy.
ये सब लोग लूज़ कर देते हैं जब हमारी लैंग्वेज से हम अलग लग जाते हैं उन्हें। This is the core of his thesis. This is what he talks about in this first chapter. Colonialism and cultural bomb. Googie introduces one of his most famous concepts, which is the cultural bomb. Colonialism, he argues, did not only exploit land and labor. Colonizers आए, उन्होंने लैंड को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, लेबर, चीप लेबर लेके गए, सिर्फ यही नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक कल्चरल बॉम्ब फोड़ दिया आगे। और उस कल्चरल बॉम्ब का क्या पर्पस था? To annihilate belief in African names, languages, environment, and heritage, to make Africans see their past as backward and shameful. और ये आइडियोलॉजी, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, ये आइडियोलॉजी अभी भी चल रही है। कितना काला है, ये कितनी गोरी है तो कितनी सुंदर है। अभी I was speaking to one of my relatives, and she was talking about one of the weddings that she attended. And she said, "Oh my God, I don't know what this girl did. She's so beautiful. She's so, she has a white complexion, not white, but yeah, fair complexion. And she had chosen this boy who was so dark. There was no match at all." And I was like, you've not even met, you've not even spoken to that person, how he's at heart, and you are making all of these comments. And I literally said this. I said, don't talk to me about all of this. So, this is the ideology that they have put in our heads. कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो देश है, वो बैकवर्ड है, अनसिविलाइज्ड है, बात नहीं करनी आती, डर्टी है, और वही चल रहा है। सच में डर्टी फिर बन गया है उस तरह से। क्योंकि जब बार-बार आपको एक चीज़ बोल दी जाए तो लगता है कि हाँ यार, सच में यही होगा। शेमफुल है हमारा पास्ट। टू मेक यूरोप द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वही हैं जो हैं, उनको सब कुछ आता है। तो ये कल्चरल बॉम्ब उन्होंने फोड़ा है। एंड व्हाट इट डज इज इट प्रोड्यूसेस सेल्फ हेट्रेड, इट प्रोड्यूसेस एलियनेशन, एंड इट प्रोड्यूसेस मेंटल कोलोनाइजेशन। हम मेंटली कोलोनाइज्ड हैं, फ्रीडम के बाद भी हम कोलोनाइज्ड हैं। colonial minds. The colonized subject begins to measure himself by European standards. कि यार वो ऐसा करते हैं तो हम अभी भी पीछे ही हैं, तो हमारे लिए स्टैंडर्ड वो लोग हैं। The colonial school system. Gugi turns to his own experience in colonial Kenya, and he explains how children spoke African languages at home, but in school, English became the language of power. आपको इंग्लिश आती है तो आप पावरफुल हैं, and you all know that this is very much there in our environment, in our culture also. Our maybe our parents, maybe our grandparents, किसी ना किसी ने आपको ये जरूर बोला होगा that teach this to your child because this looks nice, it sounds nice, कि वो देखना वो बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। आप वो नहीं देख रहे कि ये वाला बच्चा इतनी अच्छी आपकी मदर टंग बोल रहा है। आई गिव यू a real life example. So my child is very small abhi, and he doesn't know all of this. So yeah, he's learning. He picks up. We are speaking Hindi at home, so he, of course, he learns Hindi. We're speaking English at home, so he understands that, and he produces a few sentences in English. And then I went to my hometown a few days back, and my hometown, they speak Mandyali, which is a dialect uh, in Himachal. So he started picking on that language, and because घर पे सब वो बोलेंगे अगर, तो वो तो pick up करेगा ना. And it was very fun for him because the language is like that. It is quite fun and funny. And he started speaking in that language. So everybody around was like, "My God, what is this? ये तो बिगड़ गया यहाँ आके, इसकी तो पूरा लैंग्वेज खराब हो गया यहाँ आके." And I was like, "Why don't you let him learn? This is the language that you're speaking in front of him, and then when he is doing it, then he's bad. How can he be bad like that?" So that's what he's saying. कि अब और यहाँ पे स्कूल्स में जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, यू नो दैट व्हेन आई वेंट टू कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग वाज कंपल्सरी, ऑफ कोर्स। एंड नॉट जस्ट दैट, इफ एनीवन वाज फाउंड स्पीकिंग इन एनी अदर लैंग्वेज दैन इंग्लिश, हिंदी पंजाबी अगर आप बोल रहे हो, तो वो डंडा मारते थे हाथ पे। स्कूल इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पावर। पनिशमेंट्स वर गिवन फॉर स्पीकिंग Gikuyu, सेम, इट्स सेम हियर ऑल्सो। और आई डोंट नो अभी कैसा है, अभी तो पनिशमेंट्स अलाउड भी नहीं है, बट थी उस टाइम पे, मारते थे।
कि सिखाने के लिए। Students were humiliated for using their mother tongue, as I just told you. English became associated with intelligence. अगर आपको इंग्लिश आती तो आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास कोई प्राउड होने की एक चीज है, आप सुपीरियर हो, आप प्रेस्टीज है आपके पास, सोशल मोबिलिटी, सिविलाइजेशन, सब. African languages became associated with backwardness, shame, and rural life. And literally, my child was given this comment कि तू कैसे गाँव वालों की तरह बात कर रहा है. I was listening to all of this and I was, you know, trying to understand that why the kind of mentality, the kind of ideology everyone has, not just some random people, even people at our home. Thus, colonial education created a psychological split between home identity, बेचारे बच्चे फंस जाते हैं, घर में ये स्कूल में वो. So this division produced alienation. The language hierarchy. Googie explains how colonialism created a linguistic hierarchy. European languages, English, French, Portuguese, were superior, and African languages inferior. Same for Indian. And the result, African intellectuals wrote in European languages. How many brilliantly written Hindi novels do you know? आई थिंक वही पता होंगी जो अभी जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला बिकॉज दे वर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश एंड देन दे रिसीव्ड फेम. गीतांजलि श्री और others. African audiences were excluded from their own literature. हम लोग इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं तो वही पढ़ते हैं जो यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिखी होती है. African literature written in English could not reach peasants and workers, the majority of the population. है ना? The alienation of the African writer. Googie confesses that he too initially wrote in English. Weep not, child, the river between a grain of wheat, सब इन्होंने English में लिखा. But he now views this as participation in the colonial structure. He argues that writing in English disconnects the writer from the peasantry. It reinforces elite culture. It sustains neo-colonial dependency. Right? African writers become cultural middlemen, translating Africa for Europe rather than speaking to Africans. Then he talks about language and control of memory. Googie makes a crucial theoretical point: control of language equals control of memory. मतलब अगर African children learn history through English, they read literature only in English, they think and dream in English, then their imagination becomes colonized. ये है पावर, ये है कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज विच इज इक्वल टू कंट्रोल ऑफ मेमोरी. The colonized subject begins to see Europe as the norm and Africa as deviation. वो नॉर्म है और हम कुछ तो गड़बड़ है हमारे अंदर, हम डिविएटेड हैं, हम नॉर्मल से परे हैं. Literature and class. Googie links language to class struggle. So English speaking African writers form part of the petty bourgeois elite, urban intellectual class, right? जो English speaking Africans हैं, African writers हैं, वो लोग ये पार्ट बन जाते हैं petty bourgeois elite, जो एक imaginary circle है, urban intellectual class के. And African language literature, however, connects directly with workers. वो इंडिजिनस जो चीजें हैं उनको कनेक्ट करता है, उनकी बात करता है, पेजेंट्स की, ओरल ट्रेडिशंस की. Thus, the language question is not only cultural but economic and political also. Then he describes his turning point, writing the play Nagahika Ndida in Gikuyu. And he performed it with peasants at Kamirithu. For the first time, literature directly engaged the working class. And he experienced what? Immediate audience participation. लोगों को क्योंकि मजा आने लगा, वो देख रहे थे कि अच्छा ये हमारे बारे में है, ये हमें कनेक्ट करता है, मतलब यू रिलेट विद इट. Collective creativity, true cultural connection. So this convinced him that decolonization must begin with language.
एंड फाइनल पोजीशन, ये तो ये चैप्टर 1 था, ठीक है अभी? ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हमने। सो ही कंक्लूड्स विद अ रैडिकल प्रपोज़ल कि अफ्रीकन राइटर्स शुड राइट इन अफ्रीकन लैंग्वेजेस, ट्रांसलेशन शुड कनेक्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस globally, European languages should not be the primary medium of African creativity, and cultural liberation requires linguistic liberation. अब बहुत सारे ऑफ कोर्स अपोजिंग व्यूज हो सकते हैं। अगर आप लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज में तो आप ग्लोबली कैसे कनेक्ट करोगे? तो ट्रांसलेशन शुड कनेक्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस ग्लोबली। सो ही कॉल्स फॉर अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम द colonial linguistic framework. ठीक है? Let's move on to the second chapter, which is the language of African theater. So, in this chapter, he moves from the general theoretical argument about language to a concrete case study, which is African theater. Theater की बात करेंगे. So, this chapter is deeply autobiographical and political also. It centers on his experience with the Community Community Education and Cultural Center and the production of this play that he produced in Gikuyu. Colonial theater versus popular African theater. So he begins by distinguishing between two types of theater in colonial and post-colonial Africa. एक तो elite theater जो colonial के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें इंग्लिश में परफॉर्म होता था, जो अर्बन सेंटर्स में है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे कुछ थिएटर्स जो मुंबई, दिल्ली, बंगाल, मद्रास, इन जगहों पे होंगे, मेंट फॉर एजुकेटेड एलीट, हाँ, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग वहां जाएंगे, modeled on European dramatic traditions जैसे कि शेक्सपियर, इब्सन एटसेट्रा, डिपेंडेंट ऑन प्रोसिनियम स्टेज कन्वेंशंस, सब कुछ उनके जैसा। और दूसरी तरह का है पॉपुलर या पीपल्स थिएटर, विच इज रूटेड इन ओरल ट्रेडिशंस, हमारे रामलीला के स्टेज, performed in African languages, involves communal participation connected to rituals, songs, storytelling, dance, and collective memory. जैसे नुक्कड़ नाटक. Gugi argues that true African theater historically belonged to the second category. तो फिर ये चैलेंज करते हैं colonial myth को that Africa had no theater. ये myth था कि हमारा तो कोई थिएटर ही नहीं है। तो ये आर्ग्यू करते हैं कि अफ्रीकन सोसाइटीज हैड रिच ड्रामेटिक ट्रेडिशंस। और अगर हम इंडियन अगेन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडियन सोसाइटीज आल्सो हैड वेरी रिच ड्रामेटिक ट्रेडिशंस। हमारे जो इंडिजिनस, हमारे जो लोकल हैं, जैसे जात्रा है या बांठड़ा है, हमारे हिमाचल में बांठड़ा बोलते हैं, आई थिंक बंगाल में जात्रा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी अलग तरह की जात्रा होती है। तो हर एक रीजन का अपना अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रिच ड्रामेटिक ट्रेडिशन है, एम्बेडेड इन रिचुअल, इनिशिएशन सेरेमनीज, फेस्टिवल्स होते हैं, स्टोरी टेलिंग होती है, डांस एंड म्यूजिक होता है। मैं हिमाचल की बात करूँ तो शिवरात्रि इज अ बिग बिग अफेयर, इट इज इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर लगता है मंडी में। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। थिएटर वाज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम लाइफ, इट वाज कम्युनल एंड पार्टिसिपेटरी। लोग बात उसमें करते थे, नॉट बेस्ड ऑन रिटन स्क्रिप्ट्स। सो जैसे अभी मुझे लगता है जो हमारी फ़ोक टेल्स थी ना, हमारे अपने-अपने रीजन्स की, वो बहुत कम हो गई हैं। मतलब हमने भी सुनी है, हमने अपने ग्रैंड-पेरेंट्स से सुनी, बहुत ज़्यादा नहीं सुनी ऑनेस्टली, थोड़ी बहुत सुनी, जो रीजनल टेल्स होती थी, छोटी-छोटी टेल्स। अ, अब अगर मैं बात करूँ कि विल माय चाइल्ड बी एबल टू हियर ऑल ऑफ दैट? आई डोंट थिंक, नोबडी टेल्स हिम दोज़ स्टोरीज़ एनीमोर। इट्स गोइंग समव्हेयर, इट्स diminishing into the thin air. So colonialism disrupted this tradition. How कि उन्होंने आके कहा कि तुम्हारा तो ये है ही नहीं कुछ, ये प्रिमिटिव है, बहुत अनसिविलाइज्ड है, आ जाओ हमारे, हम प्रॉपरली बनाएंगे ड्रामेटिक मॉडल्स, और इम्पोज कर दिया अपनी लैंग्वेजेस को। जस्ट एज colonial schools privileged इंग्लिश लिटरेचर, colonial थिएटर भी फिर प्रिविलेज करने लगा शेक्सपियर को या यूरोपियन ड्रामा को, इंग्लिश लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस को, एंड अफ्रीकन स्टूडेंट्स वर ट्रेन्ड टू परफॉर्म यूरोपियन वर्क्स। हम लोग आज भी आप यूनिवर्सिटीज में जाओ तो शेक्सपियर को परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी। अपनी कहानियों को, अपनी ओरल ट्रेडिशंस को भी अगर हम आगे लेके जाएं तो कितना अच्छा होगा। सो थिएटर बिकेम अ स्पेस ऑफ imitation, a performance of European values, an extension of the cultural bomb. Remember the cultural bomb.
The Kamirithu experiment, the central part of this chapter focuses on the Kamirithu Community Education and Cultural Center in Kenya. And he describes कि किस तरह से 1970s में इन्होंने काम करना स्टार्ट किया इन सब के साथ, लोकल लोगों के साथ। एंड गोल ये नहीं था कि मुझे सिर्फ परफॉर्म करने हैं प्लेस, लेकिन एक उनको एक कलेक्टिव एजुकेशन क्रिएट करना था, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी थी पॉलिटिकल और कल्चर को वापस से रिक्लेम करना था कि ये मेरा कल्चर है। So he co-wrote I Will Marry When I Want with Gugi wa Miri. Isme it is written in Gikuyu. It is performed by non-professional actors from the village. Uh, Rehearsals जैसे मेथड एक्टिंग कहते हैं जैसे, तो रिहर्सल्स वर वेरी कलेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी। स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई जैसे जैसे वो परफॉर्म कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे। So he talks about the exploitations of peasants by wealthy elites. लैंड डिस्पोजिशन की बात वो करते हैं, चर्च में कितना हिपोक्रेसी है, करप्शन है, नियो कॉलोनियल कैपिटलिज्म की बात करते हैं। सो ऑडियंस ने रिकॉग्नाइज किया खुद को स्टेज पे, वो देख रहे थे कि ये तो हमारी कहानी है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। थिएटर एज कलेक्टिव प्रोडक्शन, गूगी एम्फसाइजेस दैट कमीरिथु थिएटर डिफर्ड फ्रॉम एलीट थिएटर बहुत सारे वेज में। एक कि स्टेज वाज ओपन एयर, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं था एक्टर्स और ऑडियंस के बीच में। सॉन्ग्स और डांस इमर्ज फ्रॉम लोकल ट्रेडिशंस। स्पेक्टेटर्स पार्टिसिपेटेड इमोशनली ऑल्सो एंड इंटेलेक्चुअली ऑल्सो। सो थिएटर बिकेम एक पॉलिटिकल क्लासरूम, सीख भी रहे हैं, रिलेट भी कर रहे हैं। A site of community awakening, a tool of decolonization. Just a minute, please. Yes. Okay. Next. Government suppression. So the success of this play alarmed the Kenyan authorities. क्यों? क्योंकि एक तो peasants were becoming politically conscious, उनको समझ में आ रहा है। Theater was exposing exploitation. Language had returned power to the people. तो गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? उन्होंने प्ले बैन कर दिया, उन्होंने ये पूरा थिएटर डिस्ट्रॉय कर दिया और उन्होंने गूगी को अरेस्ट कर लिया इन दिसंबर 1977। सो गूगी इंटरप्रेट्स दिस एज प्रूफ कि लैंग्वेज में पॉलिटिकल पावर है। एक क्रूशियल आर्ग्यूमेंट इस चैप्टर का है कि लैंग्वेज डिटरमाइंस ऑडियंस। अगर थिएटर इंग्लिश में है तो ऑडियंस एलीट है, अगर गिकुयू में है तो ऑडियंस अपनी पेजेंट वर्किंग क्लास लोग हैं, एंड थिएटर बिकम्स अ मास डेमोक्रेटिक फॉर्म। सो लैंग्वेज इज नॉट न्यूट्रल, उसका स्ट्रक्चर जो है वो कल्चर को एक्सेस करता है। थिएटर हैज क्लास स्ट्रगल। गूगी फ्रेम्स थिएटर विद इन मार्क्सिस्ट टर्म्स कि एलीट थिएटर ऑफ कोर्स वो रूलिंग लोगों को सपोर्ट करता है, उसमें ऐसी ऐसी चीजें वो डालेंगे जो एक जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो आइडियोलॉजी बनी हुई है उसको सपोर्ट करेंगे। जैसे हम लोग मार्क्सिज्म में पढ़ते हैं, रामू काका वाला फेमस एग्जाम्पल, कि आइडियोलॉजी है कि वर्कर्स को ऐसे होना चाहिए, ऐसे लॉयल बन के रहना चाहिए, वो सब पूरा थिएटर भी सपोर्ट करेगा। पीपल्स थिएटर सपोर्ट्स वर्कर्स एंड पेजेंट्स। The battle over language in theater is therefore a battle over economic power, political consciousness, cultural direction. अब गूगी दिखाते हैं हाउ दिस इन्वॉल्वमेंट इन गिकुयू थिएटर लेड डायरेक्टली टू इम्प्रिजनमेंट, टू हिज डिटेंशन। अब स्टेट टॉलरेट नहीं कर पाया, इट कुड नॉट टॉलरेट गिकुयू लैंग्वेज थिएटर मोबिलाइजिंग पेजेंट्स को वो एक पावर दे रहे हैं किसी तरह की। So this demonstrates that African language art has revolutionary potential. इस चैप्टर में क्या क्या बात हुई कि अफ्रीकन थिएटर एग्जिस्टेड बिफोर कोलोनियलिज्म, कोलोनियलिज्म डिस्प्लेस्ड इंडिजिनस परफॉर्मेंस ट्रेडिशन, वो लोग आए और हटा दिया। इंग्लिश लैंग्वेज थिएटर एलिट्स को सर्व करता है, अफ्रीकन लैंग्वेजेस का जो थिएटर है वो लोगों के साथ कनेक्ट करता है। लैंग्वेज डिटरमाइन करती है पॉलिटिकल पावर को, और कमीरिथु प्रूव्ड थिएटर कैन बी अ टूल ऑफ डीकोलोनाइजेशन। थर्ड चैप्टर इज द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन फिक्शन। अब ये फिक्शन पे आ गए।
नॉवेल्स पे आ गए कि कैसे लैंग्वेज ऑडियंस को, क्लास कैसे अलाइन्ड है, कल्चरल डायरेक्शन क्या है, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करता है लैंग्वेज। अगर फर्स्ट चैप्टर थियोरेटिकल था, सेकंड प्रैक्टिकल था थिएटर के बारे में, थर्ड इज़ सेल्फ क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव। यहाँ पे गूगी एनालाइज़ कर रहे हैं अपना करियर एज़ अ नॉवेलिस्ट और ये एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों इन्होंने अबैंडन किया इंग्लिश को। So Googie poses a direct and provocative question here. Who is the African writer writing for? किस लिए, किसके लिए लिख रहे हो आप? उन्हीं के लिए लिख रहे हो? He argues that the answer depends entirely on language used. अगर नॉवल इंग्लिश में लिखी गई है तो ऑडियंस प्राइमरीली एलीट होगी, एजुकेटेड होगी, ऑफन इंटरनेशनल ऑडियंस होगी। अगर अफ्रीकन लैंग्वेजेस में लिख रहे हो तो ऑडियंस आपके लोग हैं, पेजेंट्स और वर्कर्स। सो लैंग्वेज डिफाइंस द सोशल बेस ऑफ लिटरेचर। इनका जो अर्ली करियर था इंग्लिश में था, सो ही ओपनली रिविजिट्स कि मेरा जो अर्ली नॉवेल्स लिखे ये सारे, ये मैंने इंग्लिश में लिखे थे एंड दे वर पॉलिटिकली क्रिटिकल ऑफ कॉलोनी। मैंने लिखा लेकिन मैंने क्रिटिकली आई वाज क्रिटिकल ऑफ colonialism एंड न्यू colonialism. However, अब ये क्वेश्चन करते हैं कि हु कुड एक्चुअली रीड देम। मैंने ये किया तो, लेकिन क्या मेरे देश के पेजेंट्स जिनकी स्ट्रगल्स मैंने दिखाई हैं अपने नॉवेल्स में, उन्होंने पढ़ी या उनको वो एक्सेस कर भी पाए? इवन रेडिकल कंटेंट लूजेस इट्स रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल इफ इट इज लुक्ड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। उन्होंने पढ़ी नहीं तो उसका जो वो एक पोटेंशियल था ना रेवोल्यूशन का, वो खत्म हो गया। अफ्रीकन नॉवल एंड द colonial लैंग्वेज। अब ये आर्ग्यू करते हैं दैट अफ्रीकन नॉवल डेवलप्ड लार्जली इन यूरोपियन लैंग्वेजेस। क्यों? क्योंकि colonial एजुकेशन, जो स्कूल्स थे वो सारे colonial थे। उन्होंने प्रिविलेज किया इंग्लिश को, फ्रेंच को। पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज जो खुली, वो भी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ऑपरेट करते थे। अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल्स को ट्रेन किया गया वैसे ही टू थिंक एंड राइट इन दोज लैंग्वेजेस। किसी को तो इम्प्रेस करना है। So this created a situation जहाँ पे African reality was being filtered through European linguistic structures. African writers became dependent on European publishers and markets. अपनी तो थी नहीं कोई, जो पब्लिशिंग हाउसेस थे वो इंग्लिश नॉवेल्स को प्रेफरेंस करते थे, देते थे। सो इवन एंटी colonial novels were structurally tied to colonial institutions. One of Googie's most important argument in this chapter concerns imagination. तो ये आर्ग्यू करते हैं कि लैंग्वेज शेप्स हाउ वी सी द वर्ल्ड। आपकी जो लैंग्वेज है, आप उसी तरह से वर्ल्ड को परसीव करोगे, आप उसको देखोगे, समझोगे वर्ल्ड को। अगर एक अफ्रीकन चाइल्ड लर्न्स हिस्ट्री इन इंग्लिश, रीड्स फिक्शन इन इंग्लिश, थिंक्स क्रिएटिवली इन इंग्लिश, तो उसकी इमेजिनेशन भी वैसी ही बन जाती है, ओरिएंटेड टूवर्ड्स यूरोप, है ना? हम लोग सब सोचते हैं कि हमारा देश ऐसा-वैसा, वहाँ पे इतना अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। हमारी इमेजिनेशन उसी तरफ है। जो अफ्रीकन लैंडस्केप है, इट बिकम्स सेकेंडरी एंड यूरोप बिकम्स द रेफरेंस पॉइंट। सो दिस ही कॉल्स दिस द डोमिनेशन ऑफ द। आपने तो सिर्फ यहाँ पे आके लैंड को कब्जा नहीं किया, कोलोनाइज नहीं किया, आपने लोगों के दिमाग को पकड़ लिया, आपने उनको डोमिनेट किया, अभी भी कर रहे हो थ्रू लिंग्विस्टिक कंट्रोल। नाउ ही फ्रेम्स द लैंग्वेज डिबेट एज अ क्लास इशू कि राइटिंग इन इंग्लिश मतलब एलीट के लिए, है ना? राइटिंग इन अफ्रीकन लैंग्वेजेस मतलब आप अपने लोगों के लिए, वर्किंग क्लास लोगों को कनेक्ट कर रहे हो। यू आर मेकिंग फिक्शन पार्ट ऑफ एवरीडे कल्चरल लाइफ, डेमोक्रेटाइजेस स्टोरी टेलिंग। जैसे अगर हम जब हम लोग फ़िल्म स्टडीज़ की बात करें या अ, और भी बहुत सारी थ्योरीज़ में हम ये बात करते हैं कि फ़िल्म्स, अगर हम हिंदी फ़िल्म्स की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ सत्यजीत रे की फ़िल्म्स हैं, दूसरी तरफ लेट्स से रोहित शेट्टी की फ़िल्म्स हैं। एक आम जनता, वर्किंग क्लास कौन-सी फ़िल्म देखना प्रेफ़र करेगी? इट वुड बी स रोहित शेट्टीज़ बिकॉज़ उसमें लोगों को वही चाहिए था, हार के वो आ रहे हैं, उनको मज़ा चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए थ्रू दैट, है ना? तो एवरीडे लोगों को कौन क्या चीज़ कनेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं वो लोग, उनको वही देखना है, वही सोचना है, वही समझना है। सो फ़िक्शन भी न्यूट्रल नहीं है, इट पार्टिसिपेट्स इन क्लास फॉर्मेशन।
वही टर्निंग पॉइंट आ गया फिर से। आफ्टर हिज एक्सपीरियंस विद कमेरिथु थिएटर ही डिसाइडेड टू अबैंडन इंग्लिश फिक्शन ऑल्सो। प्रिजन में जब ये थे तो इन्होंने लिखा डेविल ऑन द क्रॉस, जो ओरिजिनल टाइटल उसका ये था। टॉयलेट पेपर में लिखा गया, प्रिजन में लिखा गया, इंटायरली इन गिकुयू, लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो ये एक्ट को ये डिस्क्राइब करते हैं, डिसाइसिव ब्रेक विद कॉलोनियल लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स। ट्रांसलेशन के रोल की भी बात करते हैं। ही डज नॉट आर्ग्यू फॉर आइसोलेशन, की मैं ये नहीं चाहता कि लोग पढ़े ही ना मेरे वर्क्स को, है ना? ये कहते हैं राइटर्स अपनी लैंग्वेज में लिखें और फिर उसको ट्रांसलेट किया जाए दूसरी लैंग्वेजेस में। ट्रांसलेशन शुड बी हॉरिजॉन्टल, अफ्रीकन लैंग्वेज से अफ्रीकन लैंग्वेज, नॉट वर्टिकल कि अफ्रीकन लैंग्वेज टू इंग्लिश। अदर लैंग्वेजेस में फिर ये अफ्रीकन लैंग्वेज बहुत सारी हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी में ये हो। So this would create cultural exchange within Africa also, and independence from European mediation. He also emphasizes that African fiction should reconnect with oral storytelling, folk narratives, songs, proverbs, collective performance traditions. European style realism is not the only model for the novel. है ना? African fiction in African languages can draw more directly from oral heritage. It can reflect indigenous narrative rhythms. It can express communal consciousness. So he's critiquing them. He's making a bold claim कि African writers को जो अभी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं, वो लोग रिस्क कर रहे हैं कल्चरल ब्रोकर्स बनने का। ठीक है, यू बिकमिंग कल्चरल ब्रोकर्स, यू आर इंटरप्रेटर्स ऑफ अफ्रीका फॉर यूरोप। आप उनके लिए काम कर रहे हो, यू मेंबर्स ऑफ न्यू कॉलोनियल एलीट। और वो अपने आप को भी इस क्रिटिक में इंक्लूड कर देता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म बिकम्स द गिव्स द चैप्टर मॉरल फोर्स। So for Googie, the language question is not aesthetic, but it is revolutionary. The choice of language determines कि क्या लिटरेचर आपकी इंपीरियल पावर को स्ट्रेंथन कर रहा है या फिर मास को इंपावर कर रहा है। ठीक है, तो ये था थर्ड चैप्टर। मूविंग ऑन टू द फोर्थ चैप्टर, द लास्ट वन, द फोर्थ essay, which is the quest for relevance. अब ये शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम फिक्शन एंड थिएटर टू एजुकेशन एंड करिकुलम रिफॉर्म। ये तो बहुत ज़रूरी है यार। हम वही सेम घिसा-पिटा मॉडल हमारे देश में भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन का, करिकुलम का। इट इज़ बोथ ऑटोबायोग्राफिकल एंड इंस्टीट्यूशनल। Googie examines his involvement in the transforming the English department at the University of Nairobi and turning it into a department of literature. इंग्लिश डिपार्टमेंट को इन्होंने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर। इंग्लिश डिपार्टमेंट, हम लोग सारी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, लिटरेचर का डिपार्टमेंट बनाया उसने। कितना एक छोटी सी वर्ड का चेंज है, लेकिन इट्स ह्यूज इम्पैक्ट, है ना? तो ये बात करते हैं, गिव्स begins by describing the structure of English studies in East African universities during the 1960s. जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी थी, है, जो उस टाइम पे कॉलेज उसी से एफिलिएटेड थी। द सिलेबस वाज सेंटर्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर। हमारे यहाँ पे अभी भी वही है। अफ्रीकन लिटरेचर वाज मार्जिनल और ऑप्शनल। इंडियन लिटरेचर बहुत कम है, बहुत ऑप्शन, छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री भी हम इंग्लिश लिटरेचर की ही पढ़ते हैं। यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशंस वर ट्रीटेड एज यूनिवर्सल। द करिकुलम फॉलोड अ रिजिड हायरार्की। इंग्लिश लिटरेचर लिटरेचर कोर आपका सिलेबस का होगा, फिर कुछ यूरोपियन लिटरेचर होगा, कोई फ्रेंच, कोई कुछ सेकेंडरी, और फिर जाके पेरिफेरल 1-2 राइटर्स आपके अपने देश के। तो Googie and his colleagues began asking कि this is relevant to whom? The quest of relevance, na? They questioned whether teaching Shakespeare and the English canon as the foundation of literary studies was relevant to Kenyan students living in the post-colonial Africa. So relevance here means connecting education to the historical reality of students, addressing the lived experience of colonialism and neo-colonialism, centering African perspectives. तो इन्होंने कहा he and fellow scholars proposed एक radical reform कि abolish करो इंग्लिश डिपार्टमेंट को और क्रिएट करो डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर विद अ न्यू स्ट्रक्चर। यू स्टार्ट विद अफ्रीकन लिटरेचर and then study the third world literature, other, and then you move outwards to European and world literatures. So the goal was not to reject Shakespeare. ऐसा नहीं है कि आप पता नहीं होना चाहिए कि शेक्सपियर कौन है, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए,
लेकिन डिसेंटर करो ना यूरोप को, उनको कोर मत बनाओ। सो ही कितनी अच्छी बात है वैसे। रीडिफाइनिंग द कैनन, इन्होंने कहा ये कैनन को हमने डिसेंटर करना है, डिस्टेबलाइज़ करना है। प्रेजेंटिंग इंग्लिश लिटरेचर एज़ यूनिवर्सल, क्रिटिक कर रहे हैं ये। इग्नोरिंग African oral traditions, treating European experience as the measure of humanity. So he argues that the canon shapes what students value, how they see themselves, what they imagine as culturally important. क्योंकि अगर आप अपने आसपास का लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो आप अपने कल्चर के साथ कनेक्ट ज़्यादा तरह से हो पाओगे। यू विल अंडरस्टैंड, जैसे हम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है, टिप्स पे पता है कि एलिज़ाबेथन लंदन इंग्लैंड में क्या चल रहा था, जैकोबियन लंदन में क्या चल रहा था। लेकिन इंडियन रोमांटिक मूवमेंट क्या है? कौन से राइटर्स थे? क्या माहौल था यहाँ पे? बहुत कम स्टूडेंट्स को क्लियरली पता है। थोड़ा बहुत पता है, लेकिन क्लियरली नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो है ही एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बना हुआ। So curriculum reform becomes a political act. So Googie insists that literature cannot be separated from economic structures, political power, colonial domination. He links the teaching of English literature to cultural imperialism. आप अभी भी डिपेंडेंट हो उन पे, intellectual subordination. So the continued dominance of English studies in African universities perpetuates colonial hierarchies even after political independence. So he argues that African literature should be the starting point of literary education in Africa. सारा अपना ओरल ट्रेडिशन ऐड करो, अपना अफ्रीकन लैंग्वेजेस पे ध्यान दो, थोड़ा कल्चरल हिस्ट्रीज को देखो। अब ये हमारे अगेन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन, क्योंकि एक मल्टीलिंगुअल नेशन है, इट्स डिफिकल्ट, इसलिए वी नीड इंग्लिश एज अ सेंटर पॉइंट। बट यस, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप लिख रहे हो उस लैंग्वेज में एंड देन आप ट्रांसलेट कर रहे हो। So this involves recognizing storytelling, myths, proverbs, and songs, integrating oral literature into academic frameworks, validating indigenous knowledge systems. Also, it's very difficult ना, पूरा novel अगर आप for example हिंदी में पढ़ रहे हो, it's very difficult to read it entirely। मतलब इंग्लिश में है तो आप फटाफट पढ़ भी लोगे। ये हालत है हम सबकी, आई थिंक। Resistance to reform, the proposal to abolish the English department met strong opposition कि ये क्या कर रहे हो। मतलब इतना ऑपोजिशन, सम फियर्ड कि यार पूरा हम एकेडमिकली पीछे रह जाएँगे, डिक्लाइन हो जाएगा। Others argue that English was a global language and it was necessary for progress. Valid point. Conservative forces viewed the reform as anti-Western. So Googie clarifies that the aim was not isolationism, लेकिन restructure करना है बस power relations को। So the issue was not studying English literature, it was the order and hierarchy of the study, कि किस hierarchy में आप core मत बनाओ उसको। This chapter expands the language debate into institutional politics. He shows that education systems reproduce power structures. Colonial mentality persists through curriculum. Cultural liberation requires cultural change. The quest for relevance becomes a metaphor for intellectual independence. So ultimately, he asks what kind of education helps African students understand their reality? If students learn about English rural life but not Kenyan land struggles, study European revolutions but not African resistance, है ना, हम सबको पता है 100 years इज वॉर क्या थी, वॉर ऑफ रोजेस क्या थी। शायद हमें अपनी लैंड की, हमने अपने नेशन की जो चाहे सिविल वॉर्स हो, चाहे जो भी वॉर्स हो, उनको हमने क्या लिटरेचर के साथ कभी इस तरह से कनेक्ट किया जैसे हम इंग्लैंड का करते हैं। इंटरनलाइज फॉरेन कल्चरल स्टैंडर्ड्स, तो फिर एजुकेशन बिकम्स एलियनेटिंग। Relevance means grounding knowledge in African history and experience. Okay? So this chapter presents curriculum reform as a continuation of anti-colonial struggle, a fight against cultural dependency, a necessary step towards mental decolonization. या बराबर बांट दो, हायरार्की मत क्रिएट करो। So the decolonization of the mind must happen in language, in creative writing, in theater, in universities, in educational structures. So this chapter completes the book's arc by moving from individual artistic choice to collective institutional transformation. Okay, so these are the core arguments which you can go through. So this is about the 4 essays which are there in
the entire book, decolonizing the mind. And I'm sure you've somehow connected with it, because जो वो अपने नेशन अफ्रीका की वो बात करे, कीनिया की बात करे, वो हम लोग भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसको हम सोच सकते हैं, राइट? थैंक यू। इफ there's any issue, let me know in the, you can connect with me over Telegram or WhatsApp. If you wish to join, please do. Thank you. See you in the next one.